Oh, sorry. Am I audible now? Sorry. Yes. Okay. So, in previous lecture, we have started floor area ratio, right? We have discussed floor area ratio. So, today this is a continuation of that topic. Basically, we will be solving 1 to 3 problems. Okay. So, please keep copy, pencil, calculator along with you. Okay. Okay, ma'am. Okay. So, see. A building is to be constructed on a plot area of 900 square meter. Okay, this is the question. अच्छा, first tell me what was the formula of FAR? FAR का formula क्या था? FAR का formula क्या था? What is the full form of FAR? Hello, am I audible or not? এই তোমরা রেসপন্স করছো না কেন গো? শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যালো, অনিমেষ? কি হচ্ছে? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, Yes, ma'am. শুনতে পাচ্ছো? আনসার দিচ্ছ না? হ্যাঁ ম্যাম পাচ্ছি। আচ্ছা, so what was the formula for FAR? What is the full form of FAR? ফ্লোর এরিয়া রেশিও। Yes, floor area ratio, right? And what was the formula? ম্যাম টোটাল প্লট এরিয়া। Total plot area. नो नो मैम, नो मैम। एक मिनट मैम, मेरे को लिखने दीजिए। हाँ लिखो। टोटल एरिया कवर्ड बाय फ्लोर्स डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। टोटल प्लॉट एरिया। Yes, so basically that is your total डिवाइड। built up area, right? Total यस मैम। built up area, or we can say total floor area. Okay, there suppose there are n number of floors, then what is the area of that all n number of floors? Okay, that is known as your built up area, total built up area. So the formula was your total built up area. I am writing it as BUA. Okay, built up area by plot area, right? So plot area. So this was the formula. Now using this formula, we have to calculate. See what is given in the question. Let us see. A building is to be constructed on a plot area of 900 square meter. So this is given. Plot area is given. Okay. The site about two streets, one of 25 meter width and the other of 15 meter. Okay. See, as I said, FAR, it is dependent on this your width of the roadway. Okay, the height of the building is also dependent upon this width of the roadway. Okay, adjacent roadway or adjacent streets. So, and the what is another given data? FAR given as 2. Okay, if each story contains 6 flats, determine the built up area of the building and its height. Okay, determine the built up area of its building. Here built up area of the building means this is total built up area only. If there is 10 number of floors, then what is the total floor area? Okay, 10 तो फ्लोर का ही टोटल एरिया कितना होगा, दैट इज द built up area of the building, or we can say this is nothing but the total built up area. ठीक है, and we can also calculate the height of the building. So वही पूछा गया है कि calculate built up area and calculate the height. और एक डाटा लगेगा हमको क्या, ग्राउंड कवरेज कितना है 50%. ओके, मतलब कि कितना एरिया, प्लॉट एरिया का कितना एरिया विल बी कवर्ड बाय द कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब ग्राउंड फ्लोर कितना एरिया को लेकर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. कितना बोला है, अगर प्लॉट एरिया 900 स्क्वायर मीटर है तो ग्राउंड फ्लोर का एरिया कितना होना चाहिए, 50% ऑफ द 900. ओके, ठीक है, मतलब कि अगर ये तुम्हारा प्लॉट एरिया है तो इसमें से ग्राउंड कवरेज कितना है 50%, मतलब
कितना एरिया में तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर कवर करेगा, इसका 50%। सो यहाँ पे तुम्हारा कंस्ट्रक्शन होगा। रिमेनिंग 50 इट शुड नॉट बी कवर्ड बाय द फ्लोर्स, मतलब ये ओपन टू स्काई होना चाहिए, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, सिर्फ 50% ऑफ द एरिया विल बी यूज्ड by the construction, or we can say this area will be covered by the ground floor। अब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही तुम्हारा होगा। हाँ, तो ये एरिया कितना है, दिस एरिया इज योर टोटल एरिया कितना था 900, पूरा एरिया कितना था 900, उसमें से सिर्फ कितना एरिया हम लोग कवर करेंगे 50%, दैट इज 450। ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक फ्लोर का बिल्टअप एरिया इज योर, एक फ्लोर का बिल्टअप एरिया ही तुम्हारा कितना है 450 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, एक फ्लोर का ही, मतलब ग्राउंड फ्लोर तो वन काइंड ऑफ फ्लोर ओनली, राइट। अब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही तो बाकी फ्लोर्स रहेगा, तो ग्राउंड फ्लोर का जितना एरिया कवर हो रहा है उसके ऊपर वाला भी उतना एरिया कवर करेगा, उसके ऊपर वाला भी उतना एरिया कवर करेगा, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ईच फ्लैट या ईच फ्लोर का एरिया कितना होगा 450 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही तुम्हारा बनेगा। ग्राउंड फ्लोर का एरिया कितना है 450, मतलब 50% ऑफ प्लॉट एरिया, 50% ऑफ 900, ठीक है। अब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही हम लोग अपना फ्लोर्स डेवलप कर रहे हैं, तो ईच एंड एवरी फ्लोर का एरिया इतना होना चाहिए, राइट। ग्राउंड फ्लोर का भी 450 है, उसके ऊपर भी 450 मीटर स्क्वायर ही होगा, फिर उसके ऊपर सेकेंड फ्लोर का भी 450 मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए, ठीक है। सो एरिया ईच बिल्ट अप एरिया कितना है 450 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्लियर है तो? यस मैम। हाँ, और क्या क्या डाटा दिया है, FAR दिया गया है। सो कैन वी कैलकुलेट, FAR तुमको दिया गया है, प्लॉट एरिया तुमको दिया गया है, तो पूछा गया है फाइंड द बिल्ट अप एरिया ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज नथिंग बट द टोटल बिल्ट अप एरिया। तो कितना होगा निकालो तो, FAR इज 2, ठीक है, प्लॉट एरिया इज 900 मीटर स्क्वायर, ओके। So what will be the your built up area? Total built up area कितना होगा? The total built up area मतलब 1800 मैम। Yes. So total built up area is what? FAR into plot area, right? FAR into plot area. FAR है तुम्हारा 2, plot area है तुम्हारा 900. So built up area will be 2 into 900, which is 1800. The first answer we obtain, right? Clear? अब पूछा गया है व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग के लिए सबसे पहले हमको कितना क्या चाहिए, नंबर ऑफ फ्लोर्स निकालना है, ठीक है। अगर तुम्हारा ईच फ्लोर का हाइट तुमको पता है एंड इफ यू कैलकुलेट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स, तो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमको इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। सो फॉर गेटिंग हाइट ऑफ द बिल्डिंग व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट, क्या निकालना चाहिए हमको पहले, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालने से पहले तुमको एक बिल्डिंग दिया गया है, ठीक है, बोलेगा कि बिल्डिंग का हाइट तुम निकालो, ठीक है, और तुमको बोला जाएगा कि सपोज एक फ्लोर का हाइट तुमको दिया रहेगा, तो तुम दूर से देखकर ही बोल पाओगे नहीं कि अच्छा इसका इतना हो सकता है अप्रोक्सीमेट हाइट। चार तरह बिल्डिंग दिया है, ठीक है, चार तरह बिल्डिंग है, G+3 बिल्डिंग है, ठीक है। इस फ्लोर का हाइट अगर 3 मीटर है तो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना होगा G+3 का? 3 into 4। यस, 12 मीटर हो जाएगा। कैसे किया, तो नंबर ऑफ फ्लोर्स 4, G+3 मतलब है टोटल 4 बिल्डिंग्स है, 4 फ्लोर्स आर देयर, ठीक है। ईच फ्लोर का हाइट है 3 मीटर, सो तुम्हारा टोटल हाइट हो जाएगा नंबर ऑफ फ्लोर्स इनटू ईच हाइट ऑफ द फ्लोर, राइट, हाइट ऑफ ईच फ्लोर। तो टोटल हाइट विल बी व्हाट, टोटल हाइट विल बी TH अगर हम लिखेंगे, टोटल हाइट विल बी नंबर ऑफ फ्लोर्स इनटू हाइट ऑफ ईच फ्लोर, EH हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ईच फ्लोर का हाइट। तो टोटल हाइट विल बी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल बी नंबर ऑफ फ्लोर्स इनटू ईच फ्लोर का हाइट, ठीक है। तो वी कैन एज्यूम दिस वन, हम लोग तो एज्यूम कर ही सकते 3 to 3.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है, तो कोई भी एक मीटर तुम एज्यूम कर लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो ये वाला तो एज्यूम कर लोगे। अब चाहिए क्या हमको, n, दैट इज नंबर ऑफ फ्लोर्स। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स कैसे निकालोगे,
तुम्हारा क्या है, टोटल बिल्टअप एरिया तुमको पता है 1800 है। ओके, ईच फ्लोर का बिल्टअप एरिया कितना है, 450 है। ये टोटल बिल्टअप मतलब है कि पूरा बिल्डिंग का बिल्टअप एरिया ये है, सब फ्लोर का मिलाकर टोटल बिल्टअप एरिया ये है, और ईच फ्लोर का बिल्टअप एरिया ये है। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्लोर्स देन? मैम टोटल बाय ऑन फ्लोर यस, बिल्टअप एरिया। तो टोटल बिल्टअप एरिया बाय ईच बिल्टअप एरिया, राइट, सिंगल बिल्टअप एरिया ऑफ ईच फ्लोर, राइट। तो निकालो कितना होगा। तो ये है तुम्हारा 1800, ये है तुम्हारा 450, कितना होगा? 4 मैम 4। 4, हाँ। सो n will be 1800 divided by total built up area by built up area of each floor, that is 450। तो आएगा कितना, 4 नंबर आ रहा है तुम्हारा नंबर ऑफ फ्लोर्स, ठीक है। नाउ लेट अस सी ईच हाइट का, ईच फ्लोर का हाइट अगर हम एज्यूम करेंगे 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर। सो व्हाट इज द टोटल हाइट देन? 12 हाँ 12, 3 इंटू 4 नंबर ऑफ फ्लोर्स इंटू 3 मीटर, राइट। सो 12 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग किया 12 मीटर। अगर तुम्हारा हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है, 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मीटर एज्यूम किया, देखो 3.3 मीटर एज्यूम किया है। तो सिंपली 3.3 इंटू 4, 13.2 मीटर, ठीक है। सो कैन वी सॉल्व लाइक दिस प्रॉब्लम इजीली? अब नेक्स्ट वाला तुम लोग करोगे, नेक्स्ट हम कुछ नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ये वाला देखो, फाइंड आउट द मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज एरिया ऑफ द प्लॉट एज गिवन फॉर अ बिल्डिंग ऑफ G+3, ठीक है। और ये वाला एरिया दिया गया है, ऐसा टाइप का एरिया है, ट्रेपेजॉइडल एरिया है, ठीक है। तो बोला गया है इसका ग्राउंड कवरेज निकालो, ठीक है। और ये वाला डाटा तुमको सपोज कहाँ गया, and they will provide you this data, okay। ये टेबल, this table will be given to you, okay। तो निकाल पाओगे कितना होगा? सो दिस टेबल इज गिवन टू यू, ठीक है। तो क्या है, ग्राउंड कवरेज फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, देखो तो कितना है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ग्राउंड कवरेज फॉर प्लॉट साइज अप टू 200 स्क्वायर मीटर इज 60%, ठीक है। एंड प्लॉट साइज अप टू 500 स्क्वायर मीटर और मोर इज 50%, ठीक है। अगर तुम्हारा प्लॉट का साइज 200 स्क्वायर मीटर के अंदर है, मतलब उससे कम या इससे विद इन दिस लिमिट, देन हम लोग का ग्राउंड कवरेज कितना बोला है कि हम वो प्लॉट एरिया का 60% वी कैन यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, ओके। उसके ऊपर हम लोग अपना फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वेरएज अगर तुम्हारा प्लॉट एरिया इज मोर देन 500 स्क्वायर मीटर, देन द ग्राउंड कवरेज विल बी 50%, ओके। तो तुमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट द मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज, ठीक है, फॉर द गिवन प्लॉट एरिया। ये वाला प्लॉट के लिए कितना ग्राउंड कवरेज होना चाहिए, एंड दिस डाटा इज गिवन टू यू, ठीक है। और ये टेबल दिया गया है। तो देखो ग्राउंड कवरेज निकालने के लिए क्या चाहिए, ग्राउंड कवरेज निकालने के लिए हमको प्लॉट साइज चाहिए, ओके। इट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्लॉट साइज, ठीक है। तो वंस वी कैलकुलेट द प्लॉट साइज वी कैन इजीली से कि इसका 60% होगा ना कि 50% होगा ग्राउंड कवरेज, ओके। तो लेट अस सी कितना आएगा। तो पहले हमको प्लॉट एरिया निकालना है, इसका प्लॉट एरिया निकालो तो क्या होगा। वेट मैम मैं निकालता हूँ।
मैम 382.5 स्क्वायर मीटर। हाँ, कैसे आया? बाकी लोग को तो हैरान हो गया होगा, कैसे आया बोलो। वही तो मैम, हाफ मैम इंटू। ट्रापेजियम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला देगा तो हो जाएगा। यस, वेरी गुड वेरी गुड। ट्रापेजियम का एरिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज द ट्रापेजियम का एरिया? कौन बोलेगा तुम दोनों को छोड़ के? बाकी लोग बोलो तो। महबूब, शुभदीप, साहा, व्हाट इज द फॉर्मूला? ट्रापेजियम का फॉर्मूला क्या है? हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल कौन सा साइड लग रहा है? ये वाला एरिया है तुम्हारा, देखो दिस इज द एरिया, ठीक है। ये है, ये है, ये है। तो यहाँ पे पैरेलल साइड कौन सा है? ये और ये, दिस आर द पैरेलल साइड, ठीक Yes, है। ma'am. ये और ये, तो इसका समेशन कर दो। इसका समेशन कितना हो जाएगा तुम्हारा? है 20 + 25, ठीक है। और तुम्हारा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि दोनों का पैरेलल साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है? तो ये है ये वाला, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज व्हाट? 17। यहाँ पे इनटू 17 कर दो, करके आ रहा है कितना? 382। 82.5। हाँ, 382.5 मीटर स्क्वायर, राइट। तो अब ये मीटर स्क्वायर प्लॉट एरिया के लिए ग्राउंड कवरेज कितना होगा? लेट अस सी। देखो 382.5, ठीक है। अब हम लोग का क्या था? अगर लेस देन 200 होता या अप टू 200 होता तो 60% डायरेक्टली मिल जाता, या मतलब 500 के ऊपर अगर होता तो क्या हो जाता? 50% हम लोग को मिल जाता। लेकिन हम लोग का कहाँ पे रह रहा है? बीच में रह रहा है, राइट। 382.5 बीच में आ रहा है, तो सिंपली इंटरपोलेट करना है हमको। तो इंटरपोलेट कैसे करोगे? इंटरपोलेट कैसे करना है? तो हम लोग का साइज है इसमें, इन दोनों के बीच में 200 500 के बीच में कितना है? 382, ठीक है, 0.5। तो हम लोग का ये वाला भी ग्राउंड कवरेज भी इन दोनों के बीच में होना चाहिए, समवेयर इन मिडल ऑफ दिस 50 और 60 के बीच में। तो यहाँ पे सपोज दैट इज x, ठीक है। तो कैसे निकालोगे बोलो तो? मैम इसके लिए इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। हाँ, इंटरपोलेशन। मैम वहाँ पर तो दिया हुआ है, अगर प्लॉट साइज अप टू 500 होता है तो हम 50 ले सकते हैं। सब यहाँ पर तो दिया है प्लॉट साइज अप टू 500 स्क्वायर मीटर। और मोर। ये तो, हाँ तो ये तो डायरेक्ट 50% हम ले सकते हैं एक बार में। हाँ, ये भी सही है। ये एज पर द टेबल ये भी डायरेक्ट हम लोग को तो अप टू बोल ही दिया है। ठीक ठीक, Yes, ma'am. हाँ 50% ही ले लो, ठीक है। Towards. लेकिन यहाँ पे तो ठीक है, ठीक ही बोला। ये तो अप टू 500 बोला है ना, तो 500 के नीचे ही है ये वाला, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग 50%, ये देखो ये इससे डायरेक्टली हम लोग को मिल गया है। ओके, कुछ कुछ में तुमको ये ग्राउंड कवरेज नहीं दिया रहता है, सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू द थर्ड प्रॉब्लम। अच्छा, ये इसका प्रॉब्लम कितना है? हाँ, so this is the third problem. See, a residential building is to be constructed on a plot area, यही वाला दिया है as shown in the figure, ठीक है। FAR है तुम्हारा 2, ठीक है, and maximum ground coverage is 50%. So determine the built up area. अपने से करो ये, अब बोलो। तो क्या दिया? FAR दिया है, ग्राउंड कवरेज दिया है, और बोला है यहाँ पे क्या? बिल्टअप एरिया, टोटल बिल्टअप एरिया निकालने। बिल्टअप एरिया ऑफ द बिल्डिंग मतलब टोटल बिल्टअप एरिया, ठीक है। 765 मैम, क्या? टोटल बिल्टअप एरिया। 755, ओए हाँ 765। 765। अच्छा, तो की करे बार कर ले, बाकीरा बोलो तो कैसे करेंगे? क्या था? FAR इक्वल्स टू क्या था? FAR इक्वल्स टू था तुम्हारा टोटल बिल्टअप एरिया, ठीक है। टोटल बिल्टअप एरिया मतलब बिल्टअप एरिया ऑफ द बिल्डिंग बाय प्लॉट एरिया, ठीक है। इसमें से क्या क्या चाहिए हमको? टोटल बिल्टअप एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए? FAR चाहिए था और प्लॉट एरिया चाहिए था, ठीक है। सो टोटल बिल्टअप एरिया इज FAR इंटू प्लॉट एरिया। FAR गिवन 2 है, ठीक है।
प्लॉट एरिया पहले प्रॉब्लम में दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या डायग्राम दिया है, तो सिंपल इसका फिर से एरिया निकालो, प्लॉट का एरिया निकालो, ठीक है। तो ये यहाँ पे बिठा देना, 765 तो ये आ रहा है तुम्हारा 765 प्लॉट 765, एरिया। yes ma'am. प्लॉट एरिया कितना आ रहा है, प्लॉट एरिया तो इतना नहीं आएगा, सो हाफ इंटू 382.5 मैम। 382 पॉइंट सेम ही तो है, वो पिछले वाला ही तो ट्रापेजोइडल है ना, ठीक है। सेम है। तो हाफ इंटू 20 प्लस 25 इंटू 17, ठीक है, सेम सेम। तो 382.5 382.5, तो ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे पिटेगा वो, इंटू 2 कर दो, तो टोटल बिल्डअप एरिया विल बी हाउ मच, तो कितना होगा 2 इंटू 382.5 765 आएगा, ठीक है। तो टोटल बिल्डअप है 765 मीटर स्क्वायर। अब तुमको यहाँ पे हाइट ऑफ द बिल्डिंग नहीं दिया गया है, सो प्लीज कैलकुलेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इजी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी कैलकुलेट करना, क्योंकि ग्राउंड कवरेज तुमको दिया है ऑलरेडी 50%। So how to calculate height of the building? So TBA will be FAR into plot area. So FAR into plot area 382.5, which is 765 meter square. Okay. Now tell me what is the height of the building? पूरा बिल्डिंग का हाइट, लेट अस एज्यूम ईच फ्लोर हाइट, ठीक है, ईच हाइट कितना होगा, ईच फ्लोर हाइट हम लोग एज्यूम करते हैं 3.5 मीटर, सबके लिए कॉमन हमने कर दिया, जाओ हाइट ऑफ ईच फ्लोर है 3.5 मीटर। सो व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग? मैम फ्लोर तो फोर्थ होगा, फोर्थ फ्लोर होगा, 4 ठो होगा। टोटल बिल्ट अप एरिया ये है, मतलब सब फ्लोर का एरिया ये है, ठीक है। यस मैम। और ईच फ्लोर का बिल्ट अप एरिया कितना होगा, ईच फ्लोर का बिल्ट अप एरिया विल बी ग्राउंड कवरेज, मतलब प्लॉट एरिया का कितना ग्राउंड कवर्ड रहेगा 50%। सो 50% ऑफ 765, ठीक है, 50% ऑफ 765 कितना है 0.5 इंटू 765 है 382। ये क्या आ रहा है ये फिर से, हाँ ठीक है, तो हाँ मैम 380. 382, ठीक है, 382.5, ठीक है, मतलब एक एक फ्लोर का एरिया इतना है, ठीक है, और टोटल बिल्टअप एरिया है तुम्हारा इतना। तो কি করে नहीं চারটে मेरा হলো तो গো? दूसरा आ रहा है। ম্যাম এখানে তো প্লট এরিয়াটা 765 হবে না, 382.5 হবে। দেন 60 अच्छा 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 382.5 है 50%। यस यस यस, हाँ ये तो प्लॉट एरिया तो 382 होगा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देन 191.25 है। तो 382.5, वेरी गुड। और ये वाला कितना होगा, 191.25। ये हो जाएगा तुम्हारा 191.25। 191.25। हाँ, तो ये है एक एरिया का फ्लोर, एक फ्लोर का बिल्डअप एरिया, यह है टोटल फ्लोर का बिल्डअप एरिया। सो एन विल बी योर TBUA by BA, सिंपल। So number of floors will be total built up area by individual built up area, right? तो टोटल बिल्ट अप एरिया तुम्हारा आया था 765 और ये आ रहा है 195 ना 91.25। 191.25, वेरी गुड। तो करने से अप्रॉक्स में आएगा तुम्हारा 4। सो नंबर ऑफ फ्लोर्स है 4, ठीक है। एक फ्लोर का हाइट है तुम्हारा, हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है कितना है 3.5, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, 3 to 3.5 तुम लोग एज्यूम करना 3.5। सो टोटल हाइट विल बी, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल बी n into EH, हाइट ऑफ ईच फ्लोर, ठीक है। सो 4 into 3.5, 14 मीटर, क्लियर? Yes ma'am. ठीक है, 14 मीटर,
ওকে সবার ক্লিয়ার বাকিদের কে কে আছো यस मैम क्लियर মাহবুব শবিক यस मैम क्लियर मैम ওকে দেখি আর কি আছে এখানে দেখতে হবে কোশ্চেন ঠিক আছে এইটুকুই তাহলে আজকে থাক বেশি নেই এখানে ओके अच्छा एमसीक्यू है हाँ एमसीक्यू है ठीक है अच्छा ये वाला करके देख सकते हैं ये वाला थोड़ा प्रॉब्लम टाइप का है हाँ थोड़ा मैम देख 2 नंबर देखो देखते पाচ্ছ কি हाँ देखा जाता दो का if the covered area of all the floors of a building fronting a street of width 10 into 10 meter is this much square meter 1000 square meter ठीक है having the plot area of 500 square meter and ground coverage of 400 square meter so what is the FAR कंफ्यूजन के लिए दिया है किंतु এটা খুব ইজি मैम এখানে তো आंसर 2 হবে यस कैसे आया कितना 1000 कंफ्यूजिंग by लग रहा है 500 अच्छा आंसर 2 श्योर बाकी रहा श्योर मैम बाकी यस मैम आंसर 2 मैम 2.5 2.5 मतलब कौन सा आंसर है ए बी सी मैम एक सेकंड हमको देखने दीजिए हाँ बी का मैम बी डी हाउ मैम 2 তো সি আচ্ছা একজন বলছে বি একজন বলছে সি ঠিক আছে আমি আসছি আর কি আছে আর বাকিরা আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলছি তোমরা যদি 2 হবে ভেরি গুড আচ্ছা those who have participated in megalith okay या टेक मेधा मतलब कोई भी बाहर जाके भी अगर किया है तो ठीक है टेक फेस्ट में करिकुलम एक्टिविटीज जो भी किया है ओके प्लीज लेट मी नो ठीक है तुम लोगों का मतलब प्राइज जीते हो कि नहीं जीते हो एटलीस्ट पार्टिसिपेट किए हो कि नहीं किए हो नेशनल लेवल में ओके नेशनल लेवल मतलब जैसे कोई गया मेगालिथ में खड़गपुर में गया वहाँ पे पार्टिसिपेट किया ठीक है वहाँ पे कुछ पार्टिसिपेट करने से भी हमको बोलो विनर होने से भी हमको बोलना ठीक है आई हैव सेंट वन फॉर्मेट टू अनिमेश दे विल ही विल फॉरवर्ड यू ओके मैम आई आल्सो सेंड ऑन नाइमल व्हाट्सएप मैम ওকে তুমি তোমাকে স্ক্রিনশট পাঠিয়েছো ফাইলটা দাও ফাইলটা না তুমি শুধু ওই ফরম্যাটে দেখে আমাকে পাঠিয়ে দাও হাতে লিখেও পাঠাতে পারবে ঠিক আছে ওই ফরম্যাটটা আমি বসিয়ে দেব ঠিক আছে ओके अच्छा व्हाट इज दिस आंसर मैम 2 ही होगा मैम 2 होगा 2 ही होगा अनिमेश तुम 2.5 से 2 कैसे चले गए अब गलत हुआ पहले गलत हुआ ठीक है अनिमेश ही बोलो जो लोग 2 बोले थे हमको तो सही है ओके लेकिन तुम 2.5 से 2 में गए क्यों व्हाट इज द आंसर व्हाट इज हाउ डिड यू गेट दिस वैल्यू देखो यहाँ पे FAR पूछा है राइट व्हाट इज द FAR फॉर्मूला टोटल बिल्ट अप एरिया ओके टोटल बिल्ट अप एरिया बाय प्लॉट एरिया ठीक है तो FAR कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए प्लॉट एरिया चाहिए और बिल्ट अप एरिया देखो फॉर्मूला याद करने का मुखस्त करने का जरूरत नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर रखो ठीक है बिल्ट अप एरिया यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है तो यू मे गेट कंफ्यूज
तो यहाँ पे देखिए एक टर्म दिया क्या है, कवर्ड एरिया ऑफ ऑल द फ्लोर्स, राइट। मतलब हम लोग बोले थे ना बिल्टअप एरिया कौन सा है, कारपेट एरिया प्लस तुम्हारा एक्सटर्नल वॉल्स इंक्लूड करके, ठीक है। तो वो सब भी तो रूफ के अंदर में ही रहेगा, राइट। ऑल दिस थिंग विल बी, दैट एरिया विल बी कवर्ड बाय द टेरेस रूफ ओनली, so that is also one kind of covered area. So if the covered area of all the floors, देखो सब फ्लोर का covered area प्लस करके कितना आ रहा है, बोला है 1000 square meter. So this is nothing but the total built up area itself. Okay, and the plot area तो बोल ही दिया गया कितना 500 square meter, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 1000, टोटल बिल्टअप एरिया मतलब है ऑल फ्लोर का है बिल्टअप एरिया, तो यहाँ पे दे ही दिया है कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स, सो दिस इज 1000 डिवाइडेड बाय 500 व्हिच इज 2। क्लियर अनिमेश? यहाँ पे कंफ्यूजन के Yes, लिए ma'am. ग्राउंड कवरेज ये सब डाल दिया है, ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके देन आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। मैम हाँ बोलो बोलो। ম্যাম আপনি একটা পড়িয়েছিলেন না কার্পেট এরিয়া, हाँ ওখানে তো doubt আছে? বাথরুম আর হ্যাঁ, हाँ बाथरूम আর কিচেনটা তো আসে না কার্পেট এরিয়ার মধ্যে। ओल्ड सी दैट वाज एज पर ओल्ड, तुम्हारा जो हम बोले थे बार बार दैट इज एज पर ओल्ड बिफोर रेरा, ठीक है। बिफोर रेरा में कार्पेट एरिया में बाथरूम किचन ऑल दिस थिंग वे आर नॉट इंक्लूडेड, ओके। लेकिन एज पर दी रेरा 2016 में जो हुआ है मॉडिफाइड होके उसमें तुम्हारा ये एरिया इंक्लूडेड हो जा रहा है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द नेट यूजेबल एरिया। पहले क्या था, द एरिया वेयर यू कैन प्लेस द कारपेट, उसको बोलते थे यस मैम, कारपेट শুধু एरिया। तो স্প্রেড बाथरूम করা। किचन इस मैम साइड में तो कारपेट प्लेस नहीं कर सकते थे, इसलिए वो सब एक्सक्लूडेड था। लेकिन হ্যাঁ एज पर दी रेरा दे हैव सेड इट इज व्हाट नेट यूजेबल। देखो बाथरूम में तुम यूज कर सकते हो, किचन भी मैम यूज एक कर क्वेश्चन है सकते हो। मैम, एक बोलो क्वेश्चन है, बोलो। जो रेरा का जो नया एक्ट है वो कौन सी ईयर में आया था? 2016, 2016 में। ठीक है। तो एज पर दिस रेरा नेट यूजेबल, इसको डिफाइन डेफिनेशन ही चेंज होके क्या कर दिया, नेट यूजेबल एरिया, मतलब जो तुम अपना पर्सनल काम के लिए यूज कर सकते हो यू एंड योर फैमिली, दैट इज द कारपेट एरिया। अब उसमें तुम्हारा बाथरूम भी आता है, किचन भी आता है, राइट, ওকে सिर्फ ম্যাম। एक्सक्लूडिंग एक्सटर्नल वॉल्स, ठीक है। Okay, ma'am. ओके देन ठीक है, ম্যাম थैंक এক্সটার্নাল यू। ওয়ালটা কি কার্পেট এরিয়ার মধ্যে আছে? ना 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 ना, ওটা তো প্লিন্থ এরিয়ায় আছে। बिल्ट अप एरिया या प्लिंथ एरिया में चला आएगा, ठीक है। ঠিক আছে হ্যাঁ। ओके Thank you, ma'am. थैंक यू। Leave कर रहा हूँ. Leave कर रहा हूँ. ओके